So students, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं. We are on page number 132 and this is question number 2 that I am. चलो tell me students, help me, what are the endings of IR ending verb? क्या endings are IR ending verbs के? IS, IS, IT, IT, ISS, ONS, ISS, CZ, ISS, CNT, ISS. ओहो अथर्व इतना एकदम फास्ट, वेल डन. So ISS, IT, IS, IT, IT, SONS, ISZ, ISSCNT and लास्ट में ISSCNT. Okay, ठीक है बच्चे लोग. चलो, choose the correct subject. Okay, so they have given us few example. First, nu. Tell me what is the meaning of nu? V. श का मतलब क्या होता है? I. Vu का मतलब क्या होता है? You. Les feuilles des arbres. Leaves The leaves of trees. Of the trees. Very good. The leaves of the trees. And finally, l'étudiant. the students. The And student. finally, हाँ, l'étudiant मतलब तो क्या है student? The student है. चलो. Is this okay? Okay. Srishti, I saw your photo which you sent me. It's right. Yeah. Nice. Srishti, I guess उसमें एक mistake है. आपने जो Which श्वाजिर का one? वू और इल्जेस लिखा है वो रॉन्ग है. श्वाजिर फॉर्म का जो वू फॉर्म और इल्जेस फॉर्म लिखा है वो रॉन्ग है. मैं उसको कॉन्जुगेट करूंगा, रुक जाओ. वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है. आई हैव टू डू इट फॉर एवरीवन. Okay. बाकी सब राइट है. और ये क्या किया है, वेयर दिस राइट. चलो ठीक है, बाकी सब बराबर है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट वन, डैश श्वाजी ला रॉब रूज. टेल मी क्या आंसर आएगा. Je. यहाँ पे हम जो लिख सकते हैं, जो श्वाजी ला रॉब रूज. टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन. I choose the red dress. I choose the red dress. Perfect. Second one, dash jaunisse et rouges en automn. Les feuilles des arbres. So les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres. So les feuilles des arbres का मतलब होता है the leaves of the trees turn yellow and red in autumn. तो आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है कि लीव्स कौन से कलर में चेंज होते हैं ऑटम के अंदर. तो आप लोगों को कलर याद रखना है, येलो एंड रेड. थर्ड वन, डैश applaudissons les artistes. परफेक्ट. No. यहाँ पे लास्ट में ONS है. ONS मतलब नु आएगा. We applaud for the artist. We applaud for the artist. Fourth one. Yeah. So quelle carrière. T Z है लास्ट में तो who आएगा. Very good. Which या इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स क्या आएगा. Which Career you. So which career do you choose? या which career are you choosing? कुछ भी लिखो चलेगा. And last one, dash remplis les fiches. So I guess ये एक ऑप्शन बचा है. English translation please. The student fill the form. The student fills the form. Okay, so FILLS वाला fills आएगा students. The student is filling the forms. चलो बच्चे लोग, आपके लिए बहुत ज्यादा important है that you keep writing everything with a pencil over there. English translation B. Are you guys studying at your home? Students, apart from your homework, apart from your test and apart from your lecture, क्या आप लोग एक वीक में सिर्फ 2 घंटे भी फ्रेंच पढ़ते हो क्या? Is my question. 2 hours your self study of French. Is it happening or not? Ask yourself. UV, आप मुझे इसका आंसर बताओ, yes or no? Yes, sir. You're studying 2 hours of French apart from all the homework and all the class work. Sir, more than 2 hours. Very good. तो आई एम वेरी मच श्योर कि बेटा आप एक टाइम के बाद बहुत अच्छा करोगे. वेरी गुड. मिनिमम 2 hours है स्टूडेंट्स. अगर आप 2 hours करोगे ना तो मेरे को लगता है बहुत मोर देन इनफ है. मतलब इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अथर्व, आर यू स्टडीइंग 2 hours? Yes, sir. ग्रेट. चलो कृतार्थ एंड अमय, आप लोग थोड़े नए बच्चे हो, आप लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है शायद. 2 hours नहीं, शायद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इन द इनिशियल डेज. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. चलो प्रियांशी, आप पढ़ रहे हो ना? Yes, sir. चलो ठीक है. अब मैं ये सब रब कर रहा हूँ. यार ये साइड वाला रब नहीं चाहिए था. जस्ट हाँ चलो, ये यहाँ से सब रब कर रहा हूँ मैं यार. ओके फाइन. आगे बढ़ेंगे अब हम नीचे. क्वेश्चन नंबर 3, conjuguer les verbes au présent. English translation. Conjugate the verbs of present. Conjugate the verb in the present tense. So students, first exercise, second exercise में क्या किया था उन्होंने खुद ने हमको conjugate करके दिया था. नहीं, इनफैक्ट हमको subject वन ढूंढना था, अब हमको verb करना है. चलो ठीक है, तो अब verb conjugate करेंगे बच्चे लोग. Starting with the first one, au printemps, les arbres dash.
Worthy song. Worthy song. ओके, तो स्टूडेंट्स देखो लेज आब्रो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल है. ओके, तो प्लूरल है मतलब मुझे क्या करना है, इल एल फॉर्म यूज करना है. ओके, इल्स एल्स फॉर्म ढूंढना होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इल्स एल्स फॉर्म यूज करूंगा इसमें. तो अब लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, ड्रॉप IR and at the endings ISSENT. So in spring season the trees turn red. Green, sorry, trees. Green sir. या green. पर यार कोई भी चीज ग्रीन कैसे टर्न हो सकती है, ट्रीज तो ना ग्रीन होते हैं यार, या तो लीव्स ग्रीन होते हैं. चलो कोई बात नहीं. सेकंड वन, और डैश आसे पारो, ON है या obey, उसको हम क्या बोलेंगे, obey. ई पे क्यों आएगा, one obeys to his parents या to her parents. One obeys to his या to her parents. Okay. After that, okay. चलो निकिता, आपने YouTube वीडियो पे कमेंट किया कुछ? Yes. Oh, thanks bro. चलो. Welcome. Next is Mari a deja 3 ans. Mary is already 3 years old. Very important word, deja मतलब already होता है. Mary already 3 साल की बड़ी हो गई है स्टूडेंट्स. तो Elle grandit rapidement, तो L फॉर्म है तो पहले IR को ड्रॉप करके IT लगाएंगे. She turns big rapidly. Okay, Atharva, you can switch on your mic and directly tell the answer. Okay, no need of messaging. Bindas. नेक्स्ट इज le ciel dash quand il y a des nuages. बताओ स्पेलिंग बताओ. Noircé. या वेरी गुड. नुआरसी बोलेंगे. IR को ड्रॉप करके IT लगाएंगे बच्चे लोग. क्यों? बिकॉज ये मैस्कुलिन है, यहाँ पे इल फॉर्म का कॉन्जुगेशन डालेंगे, मैस्कुलिन सिंगुलर इल फॉर्म. नुआरसी. टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या आएगा बच्चे लोग? The sky turns black when there are clouds. सुपर, वेरी गुड बच्चे लोग, बहुत अच्छा. 2-3 आई गेस इसमें मुझे सिर्फ गर्ल्स की आवाज सुनाई दी थी. व्हाट अबाउट बॉयज? एवरीबॉडी हैज टू आंसर. द स्काई टर्न्स ब्लैक व्हेन देयर आर क्लाउड्स. ओके, आसमान काला हो जाता है जब क्लाउड्स आते हैं. एंड गोइंग विद द लास्ट वन, रने रेयूनी. स्पेलिंग बताओ बच्चे लोग. IT. ओके, यू IR को ड्रॉप करके IT आएगा. ई एक्यूट तो एज इट इज रहेगा. रने रेयूनी से जामी शेलुई. तो रने reunites with his friends at his place. Okay, तो basically रने उनके सब फ्रेंड्स को मिला उनके घर पर. चलो, is it going easy or difficult बच्चे लोग? Easy sir. चलो ठीक है, अब मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ फिलहाल. ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग. अब स्टूडेंट्स इम्पर्सनल वर्ब्स है. मैं आपको बताता हूँ इम्पर्सनल वर्ब्स क्या होते हैं. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी सुनाऊंगा तुम लोग को, रो मत देना बस खाली. बताओ स्टूडेंट्स, यूजुअली हर एक वर्ब को कितने बच्चे होते हैं? 8. कल भी पूछा था 8 बच्चे होते हैं, बराबर. लेकिन स्टूडेंट्स प्लवर और नीचर ऐसे वर्ब्स है ना, उनसे नहीं हो पाया, उनके नहीं हुए 8. तुम लोग समझो. ओके, ऐसा नहीं है सबको 8 हो सकते हैं. उन दोनों के सिर्फ एक ही बच्चे हैं स्टूडेंट्स. उन दोनों का ज फॉर्म है ही नहीं, ट्यू फॉर्म है ही नहीं, एल फॉर्म है ही नहीं, नू फॉर्म है ही नहीं, वू फॉर्म है ही नहीं. सिर्फ इल फॉर्म ही कॉन्जुगेट होता है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? हंसना नहीं जरा भी, बहुत दुख भरी कहानी है. स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर वर्ब, और एक ऐसा वर्ब है जो मैंने रिसेंटली तुम लोग को बताया था, जो हम 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे. फालुआर. फालुआर का मतलब क्या बताया था? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये मैंने 1-2 दिन पहले लेक्चर में बताया था. फालुआर इज टू बी नेसेसरी. ओके, और इसका सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन इल्फो का मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज नेसेसरी. Is that okay students? ये भी अगर आपको चाहिए वहां पे लिख दो. This is also a third person. It's a impersonal verb which gets only conjugate in ill form. That's it, doesn't get conjugate in any other form. Is this okay students? Yes sir. चलो ठीक है. अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए इस स्टोरी को सुन के तो तुम लोग जाके 2 मिनट पोस्ट सकते हो. मैं इसको रब कर रहा हूँ. आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन. फालुआर टू बी नेसेसरी इल्फो. रब कर दूं बच्चे लोग? Yes sir. चलो ठीक है, रब कर दिया है. अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. हमने इररेगुलर वर्ब्स पढ़ने हैं. पहले भी काफी सारे हम इररेगुलर वर्ब्स पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम और इररेगुलर वर्ब्स पढ़ने वाले. जैसे लीर वर्ब. सबसे पहले लीर है ज, ली, ट्यू, ली, इल, ली, एल, ली, नू, ली, ज़, वू, ली, ज़े, इल, लीज, एल, लीज. I read, you read, he reads, she reads, we read, you read, they read, they read.
सिंपल है बच्चे लोग, आप लोग को लर्न करना होगा स्पेलिंग, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। बुआर, बुआर मींस टू ड्रिंक। जो बुआ, ट्यू बुआ, इल बुआ, एल बुआ, बुआ 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 बुआ, नु बुवा, वो बुवे, इल बुआव, एल बुआव। So which means I drink, you drink, he drinks, she drinks, we drink, you drink, they drink, they drink. समझ में आ रहा है? And going with the last verb, कैलीर। बताओ स्टूडेंट्स कैलीर कैसा वर्ब है? कैलीर को देख के कुछ याद आ रहा है? आयर गद्दार वेरी गुड सृष्टि, गद्दार वर्ब है। verb गद्दार वर्ब क्या हमने बच्चे लोग गद्दार वर्ब पढ़ा है पहले? Yes, so. ओके, जो बच्चे नए आए उनको मैं बता देता हूँ, हमने गद्दार वर्ब पढ़े थे। Let me just tell those kids who are new to us. Just 1 second, मुझे वो ओपन करना होगा। या अथर्व, आई गेस कृतार्थ, हमें आप लोगों को पता है गद्दार verbs. ओके, अथर्व नोस गद्दार yes वर्ब्स। sir मुझे पता है अमय को भी पता है? अमय, व्हाट Yes, अबाउट sir. अमय? ओके, एंड व्हाट अबाउट कृतार्थ? कृतार्थ आपको पता है गद्दार वर्ब सुने आपने पहले? no sir ओके चलो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए गद्दार वर्ब ढूंढ लेते हैं एक बार के लिए। ओके सो देखो गद्दार वर्ब कैसे होते हैं ना कृतार्थ, ये आयर एंडिंग वर्ब्स होते हैं, दिखते आयर एंडिंग वर्ब्स है। देखो इसके लास्ट में आयर ड्रॉप कर देंगे हम लोग और आयर के एंडिंग्स नहीं लगाएंगे, ईआर के एंडिंग्स लगाएंगे। तो उवरीर एक ऐसा वर्ब है जो दिखता आयर एंडिंग वर्ब है, लेकिन उसमें कौन से एंडिंग्स लगे? ईआर के। कृतार्थ आपको ईआर एंडिंग वर्ब्स पता है, उसके एंडिंग्स क्या होते हैं? yes sir क्या होते हैं बताओ? sir es eons ent अमेजिंग बेटा, सुपर। तो देखो इसमें भी हमने आयड को ड्रॉप करके ई एस ई ओ एन एस इज एन टी एन टी लगाया है। और बच्चे लोग देखो मैंने उस दिन आप लोग को बता दिया था, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी थी, एग्जांपल्स ऑफ गद्दार वर्ब की लिस्ट बना दी थी। इसमें मैंने कैलीर वर्ब भी लिखा था, अकैलीर वर्ब भी लिखा था। सो कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक, देखो यहाँ पे कैलीर वर्ब भी दिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आयर को ड्रॉप करके ई आर लगाएंगे। ज, कैल, ट्यू, कैल, इल, कैल, एल, कैल, नु, कैलो, वू, कैले, इल, कैल, एल, कैल। तो स्टूडेंट्स ये दोनों भी क्या है? गद्दार वर्ब है जो ईआर को ड्रॉप करके, सॉरी आयर को ड्रॉप करके ईआर के एंडिंग्स लगाते हैं। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वर्ब दिया है, अकैलीर वर्ब, अकैलीर। और ये अकैलीर वर्ब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उस दिन आप लोग को लिखवा दिया होगा, अगर आप लोग ने ये नोट्स कंप्लीट किए। सृष्टि, हैव यू कंप्लीटेड दिस नोट्स? Which one? IR verbs? नो, गद्दार वर्ब्स। डिड I यू राइट guess. दिस एग्जांपल्स? I guess I have written. I don't know. I'll have to see. या प्लीज सी इफ यू कैन नाउ। Yeah, it's been a long. Do you want me to send it to you? नो, डोंट सेंड मी, बट यू जस्ट सी इट। Yeah. Cool. ओके या तो बच्चे लोग आप लोग को आज नया क्या पढ़ा? हमने लीर वर्ब पढ़ा है, हमने बुआर वर्ब भी पढ़ा है और हमने कैलीर वर्ब भी पढ़ा है। प्रियांशी, निकिता, यूवी, आप लोग भी चेक करो, आप लोग ने ये गद्दार वर्ब सारे लिखे कि नहीं लिखे हैं? सारे एग्जांपल्स? हाँ सर, लिखे हैं सब एग्जाम्पल। सब एग्जांपल लिखे हैं ना? मेरे हाँ, पास एक ही अभी जगह। स्क्रीनशॉट है। ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू नाउ। तो क्या है कि आपको एक जगह सब कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, बट जब आपके नोट्स के अंदर सब कुछ एक जगह लिखा होगा, अच्छा गद्दार वर्ब सारे एक जगह मिल गए, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सारे इरेगुलर वर्ब्स अगर एक जगह मिल जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे लोग। You guys will have to help me complete with the given words. So again what they have done, they have given us 5 words and they have given us 5 sentences and we just need to fill it up. So starting with the first one, dash ce poème sur les saisons mes amis. Tell me इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा मैं ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले बुआ मतलब वहां पे अगर चाहिए तो लिख लो, बुआ का मतलब क्या होता है? ड्रिंक। अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, बुआ का फर्स्ट मतलब है ड्रिंक। फिर लीजो मतलब लेट अस रीड है, लेट अस रीड। फिर थर्ड मीनिंग बुआ मतलब वापस ड्रिंक है। फिर फोर्थ अकेलो मतलब लेट अस वेलकम है, लेट अस वेलकम। और लास्ट वाला स्टूडेंट्स कैल है, कैल। ये लास्ट वाला कैल मतलब प्लक है, प्लक। यप, चलो तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डैश स पोएम sur le saison। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? लीजो 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 लिख सकते हैं हम लोग, है ना? लीजो मतलब लेट अस रीड। तो लेट अस रीड दिस पोएम माय फ्रेंड्स। लीजो, let us read this poem on the seasons my friends। let us read this poem on the season my friends। second one, on hiver। tell me hiver कौन सा सीजन है? हमने कल ही पढ़ा था। Winter. Winter. वेरी गुड बच्चे लोग, वेरी गुड। विंटर, इन विंटर वन डैश ड्यू थे शॉड।
स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग। BOIT. वेरी गुड, BOIT। इन विंटर वंडरिंग्स व्हाट इज ड्यू थे Oh, शॉट? 40. हॉट टी, गरम गरम Hot चाय, tea. गरम चाय की प्याली हम कोई कुछ कपलाने वाली हो। चलो थर्ड वन, डैश वी तौले मोपति। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कमांड दिया है, मोपति मतलब माय स्मॉल लिटिल बेबी और ऐसा कुछ, तो हम क्या लिखेंगे? बुआ। बुआ मतलब ड्रिंक होता है। या प्लीज हेल्प मी इंग्लिश ट्रांसलेशन। बुआ drink Drink this milk. Yeah. your milk, my little. या ड्रिंक योर मिल्क फास्ट माय लिटिल बेबी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई छोटे बच्चे को कोई पिलाता है ऐसे। ड्रिंक योर मिल्क फास्ट, VITE, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विथ मतलब फास्ट होता है। ड्रिंक योर मिल्क फास्ट माय पति, मोपति। गोइंग विद द फोर्थ वन, और डैश लेरेज है और ऑटम, बताओ मीनिंग क्या आएगा? अरे पहले का आंसर बताओ। Aquilians, let us welcome. हाँ, कईल आएगा, कईल कईल, Kail. CUEILLE। या इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज। We pick up grapes in autumn. One Very good. that is welcome. one damn, kail मतलब plucks the grapes in autumn। one pluck the grapes in autumn, very important। grapes word important है, lereza it's a name of a fruit, and autumn होता है। हमें autumn तो हमने कल भी पढ़ा था। and going with the last one, nu dash, nu है तो ONS आएगा लास्ट में, Okay. ACCUEILLOS, अकेलो। we welcome to Our our friends. friends। Friends at the airport. वेरी गुड, वी वेलकम टू आवर फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट। चलो अब सारे बच्चे लोग, आप लोग श्वाजी वर्ब कॉन्जुगेट करोगे। श्वाजी मींस टू चूज। एवरीबॉडी हैज 2 मिनट्स। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, श्वाजी वर्ब में आईआर ड्रॉप करके जब एंडिंग्स लगाओगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है, बिकॉज काफी सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इतने सालों से मैंने देखा है। तो आप लोग को ये चैलेंज है, श्वाजी वर्ब को शांतिपूर्वक कॉन्जुगेट करना। इट्स अ रेगुलर आईआर एंडिंग वर्ब। आईआर को ड्रॉप करना है और IS, IS, IT, IT, ISSONS, ISZ, ISSND, ISSND लगाना है एंडिंग्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी पेशेंट, गो स्लोली एंड डू इट आराम से, एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा लोगों ने मिस्टेक की है। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, IR को ड्रॉप करेंगे तो CHOIS तो बचने ही वाला है। आप लोग को इतना समझ जाने का, एकदम इतना ईजी है। फिर ट्यू में CHOIS आएगा, फिर इल में CHOIS आएगा, एल में भी आएगा CHOIS, फिर नू में भी आएगा CHOIS, वू में भी आएगा CHOIS, फिर क्या आएगा? इल्स में भी आएगा CHOIS, एल्स में भी आएगा CHOIS। इतना आसान एकदम। अब एंडिंग्स डालना है, IS, IS, IT, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSCND, ISSEND। Is this right? Okay students? काफी सारे बच्चे अभी भी फोटो सेंड कर रहे हैं मुझे। निकिता ने वो अभी फोटो सेंड किया है। ओके निकिता, अभी सेकंड टाइम रॉन्ग राइट करने से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टाइम जो राइट करता है उन्हीं बच्चों का एकदम मस्त होता है। मिथिल आपने भी काफी रॉन्ग किया। मिथिल, यश ने भी काफी सारा रॉन्ग किया। यश, मिथिल, आप लोग अभी देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है। इतना आसान भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। मिथिल, वेयर आर यू? टेल मी, टॉक टू मी मिथिल। Yes sir. क्या मिथिल तू ऐसा मिस्टेक कर रहा है? सर मुझे लगा ISS और ISS दोबारा तो एक बार आएगा सर। अरे यार नहीं मिथिल। मुझे भी वही लगा सर, बार Even बार I thought ISIS same, थोड़ी sir. आएगा इसलिए। अरे इतना आसान है एकदम, खाली आईआर को ड्रॉप करके एंडिंग्स लगाओ। रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को भटकना नहीं है। मैंने वही वही किया था पहले सर, किया मैंने था। बात कैंसिल करके मैंने Sir, बाद में even दूसरा I लिखा। thought same. ऐसा नहीं होता, ऐसे तो क्यों नहीं है। अपने मन का मतलब कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहीं तो आपको पता था, मैं पहले भी ऐसे ही किया, मैं कट किया पूरा वो वाला। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो अभी फटाफट कॉपी कर लो। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, बहुत ही कम समय है। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल। रब 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 रब। श्वासिर रब करूँ या नहीं करूँ बच्चे लोग? आर यू स्टिल राइटिंग और यू वांट मी टू रब इट? रब करो सर। चलो ठीक है, अगर नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अमय, व्हाट अबाउट यू अमय? आपको समझा बेटा अभी? यस सर। चलो ठीक है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे हम फ्यूचर प्रॉश में। फ्यूचर प्रॉश इज अ न्यू टॉपिक, और फ्यूचर प्रॉश का आप सारे बच्चों ने ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख लिया है।
ये समझ के निकिता, यूवी, व्हाट अबाउट यू गाइस, डिड यू वॉच द वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बताओ रूल क्या है स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है आप लोग को? Subject Pronoun pronoun change, plus conjugation of alas conjugation of आलेर plus plus infinitive. infinitive verb. बस इतना स्टूडेंट्स याद रखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आलेज प्लस इन्फिनेटिव। जहां पे भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा प्लस आलेज प्लस इन्फिनेटिव होगा, वहां पर हमारा फ्यूचर प्रॉस यूज होने वाला है। चलो सर आलेर जरूरी है? एकदम जरूरी है मतलब बेटा, कोई भी एकदम ही आलेज जरूरी है, इतना जरूरी है क्या बताऊं। ओके बेटा, चलो इसमें म्यूट का ऑप्शन है। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स, je vais visiter मतलब आई एम गोइंग टू विजिट। tu vas visiter का मतलब क्या होता है? You are You visiting. are going to you are visit. going to visit। il va visiter मतलब he He is is going to going visit, to visit. elle va visiter मतलब She is he going is to going, is to going is visit. going to visit। nous allons visiter मतलब We We are we are are going to going to visit, visit. vous allez visiter You you are are going going to to visit, visit. and ils vont visiter और elles vont visiter मतलब they They are are going are to। going to visit. चलो फिलहाल स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 1 दिया, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। चलो हम लोग ट्राई करेंगे। फिनिल द हुआ ना, लेट मी चेक इफ आई हैव डन दिस वर्ब एनीवेयर और नॉट। शायद से मेरे अकॉर्डिंगली तो होना चाहिए, बाद में अगर नहीं हुआ तो अलग बात है। फिनिल, हो सब कुछ ही किया हुआ है, कितनी अच्छी फाइल है ये, है ना, इसमें मैं सब कुछ किया हुआ है। चलो तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस सम टाइम। फिनिल द हुआर, अगर देखो आप लोग को अगर समझना है तो मैं आप लोग को खाली फर्स्ट वाला बता देता हूँ कैसे करना है। फिनिल द हुआर स्टूडेंट्स मतलब टू फिनिश द होमवर्क होता है, पे लिख लो टू फिनिश द होमवर्क। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब आलेर वे और फिनिर फुल वर्ब आएगा। फिनिर बाद में पीछे ल द हुआर एज इट इज लिख देना है। फिनिल द हुआर में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बस मतलब आपको आलेर का कॉन्जुगेशन आना चाहिए, फिर ट्यू वा लिख देने का, फिर बाद में जो भी दिया है फिनिल द हुआर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, फिनिल द हुआर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इल वा लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे फिनिल द हुआर, एल वा लिखेंगे, फिर लिखेंगे फिनिल द हुआर। इज इट इजी और डिफिकल्ट बच्चे लोग, टेल मी। Easy sir. सिर्फ आलेर का कॉन्जुगेशन आना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। चलो खाली फिनिल द हुआर वाला पार्ट सब लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे, एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी। सेकंड और थर्ड शुरू मत करना, आई रिपीट, सेकंड और थर्ड शुरू मत करना, सिर्फ फर्स्ट वाला करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो सबने भेजना शुरू कर दिया है। निकिता आपने राइट लिखा है, आई विल से। चलो सेकंड वाला स्टूडेंट्स आतोंद्र देश आमी है। सेकंड वन आतोंद्र देश आमी का मतलब है टू वेट फॉर फ्रेंड्स, टू वेट फॉर फ्रेंड्स। सेकंड वाला सारे बच्चे नेगेटिव करने वाले हैं। देखो मैं आप लोग को एक बता देता हूँ फिलहाल चेक करने के पहले। जो सेकंड वाला स्टूडेंट वो क्या करेंगे, ज न वे वही पा आतोंद्र देश आमी। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर माय फ्रेंड्स। चलो नेगेटिव करना है सबको। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। निकिता ने राइट किया है, यूवी ने भी एकदम राइट किया है, वेरी गुड यूवी। यश, यश ने भी राइट किया लेकिन कैंसिलेशन किया है, एंड आई डोंट लाइक कैंसिलेशन। प्रियांशी का हम चेक करेंगे, प्रियांशी ने भी राइट किया है, वेरी गुड प्रियांशी। सृष्टि का अब हम चेक करेंगे और सृष्टि ने भी राइट किया है। सृष्टि हमेशा इल और एल साथ में करती है। सृष्टि सारे बच्चे अलग अलग करते हैं, आप भी अलग अलग करो प्लीज। ओके नेक्स्ट अथर्व का हम देखेंगे, अथर्व ने भी इल एल साथ में किया हुआ है। अथर्व अलग अलग करो प्लीज। अथर्व की हैंडराइटिंग थोड़ी ओके ओके है, वी वांट यू टू इम्प्रूव अथर्व। फिर हमारे साथ कृतार्थ है। कृतार्थ आपने चेंज कर दिया, डीई कर दिया। हेलो कृतार्थ, कृतार्थ कमिंग। कृतार्थ बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे एली लिखा है, एली ल ल द वार, और आपने क्या कर दिया, बेटा उसको राइट करो, बहुत रॉन्ग मिलेगा आपको अदरवाइज। चलो जिनल ने भी राइट किया है, जिनल ने थोड़ा ओवर हैंड राइटिंग किया है। जिनल यू शुड नॉट डू ओवर राइटिंग ऑन योर वर्क, अदरवाइज इट इज राइट। एंड अमय तो ग्रुप में डाल दिया है, अमय साउंड सो कॉन्फिडेंट। ओके अमय आपने भी राइट किया, चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स, सारे बच्चे लोग। ओके तू न वा पा, फिर बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा। यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर फ्रेंड्स। चलो बच्चे लोग सेकंड नेगेटिव करना है सारे बच्चे लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। मिथिल ने अभी सेंड किया है और मिथिल ने भी राइट किया है। मिथिल वेरी गुड, मिथिल नाइस हैंड राइटिंग मिथिल। Thank you sir. चलो बच्चे लोग आगे बढ़ो, सब लोग हम तुम्हारे साथ हैं। सेकंड वाला स्टार्ट करो फटाफट, एकदम इजी है फ्रेंड्स। फटाफट मैं खाली से बोले बच्चे लोग करो करो ऐसा बोलेगा।
तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम क्या करेंगे, इल फॉर्म आएगा, इल न वा पा, फिर आतोंद्र निजामी, एल न वा पा, आतोंद्र निजामी, नू न आलों पा, देखा यहाँ पे एन अपॉस्ट्रोफ आएगा, आतोंद्र निजामी, फिर वू न आले पा, ये निकिता ने तो वो भी कॉन्जुगेट नहीं किए थे, इल न वा पा, आतोंद्र निजामी, एल न वा पा, आतोंद्र निजामी। Is this okay students? यस सर। चलो अभी लास्ट स्टार्ट करो फटाफट। पार्थिर आलर मतलब क्या, टू लीव ऑन टाइम, टू लीव ऑन टाइम होता है बच्चे लोग, टू लीव ऑन टाइम, और टू लीव ऑन टाइम इसका आप लोगों को क्या करना है, इंटरोगेटिव करना है। चलो मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ इंटरोगेटिव वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट्स देखो, पार्थिर आलर यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेशन किया हुआ आपके सामने है फिलहाल। ओके पार्थिर आलर, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट आप ऐसा का यूज कर सकते हो, ऐसा का शव पार्थिर आलर, इज इट दैट आई एम गोइंग टू लीव ऑन टाइम। फिर सेकंड को देखो उल्टा क्वेश्चन मार्क किया, वातु पार्थिर, थर्ड को वातिल पार्थिर, फोर्थ को वातेल पार्थिर, मतलब हमने क्या किया, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। आलो नु पार्थिर, आले वू पार्थिर, वॉन दिल पार्थिर, वॉन तेल पार्थिर। चलो आप लोग के पास 2 मिनट है, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। या मिथिला अपना भी बराबर भेजा है। तो स्टूडेंट सिर्फ याद रखने वाली बात इसमें ये है कि जब भी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करोगे और वॉवल क्लैश होगा तो बीच में टी डालना है, इल और एल फॉर्म में। ओके सिर्फ इल एल फॉर्म में यूजुअली वॉवल क्लैश होता है। चलो तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो अभी हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट द वर्ब्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 इन द नेगेटिव फॉर्म, वो हम नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी नेगेटिव करना भी सीख लिया है। चलो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। या टेल मी स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, जो अभी फ्यूचर क्लॉज करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आलेट प्लस इंफिनिटिव। बताओ आलेट का कॉन्जुगेशन क्या होता है जो फॉर्म में, VIS। VAIS। वेरी गुड। तो ज वे और फिर कौन सा वर्ब दिया है, एक्रिड, एज इट इज पूरा का पूरा लिख देंगे, एक्रिड पे ई एक्यूट आएगा। ज वे एक्रिड ललोत्र अमोनामी ससवार, टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन। I am going I am to write a letter to my my mother in this evening. This evening. चलो वेरी गुड। आई एम गोइंग टू राइट आएगा बच्चे लोग, किसी ने तो आई राइट बोल दिया। अभी ये फ्यूचर क्लॉज है मतलब फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट द लेटर टू माय फ्रेंड दिस इवनिंग, आई एम गोइंग टू राइट द लेटर टू माय फ्रेंड दिस इवनिंग। चलो सेकंड वन का आंसर बताओ। Answer. है ना, डॉन्सर फुल वर्ब आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज। We are going We are going to dance together in this evening. in this weekend. So we are going to dance all together, टू मतलब all होता है और from मतलब together होता है। So we are going to all dance together बोल सकते हैं, we are going to all dance together this weekend, this weekend। चलो थर्ड वन बताओ स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा। Visited. वो और विजिटर है ना, प्लूरल है तो VONT आएगा। The tourist, yeah tell me English translation। The tourists The tourists are going to the visit palace after 2 days. after Very good, the tourists are going to visit the castle after 2 days, the tourists are going to visit the castle after 2 days। देखो स्टूडेंट्स आप लोग की आवाज मुझे रिकॉग्नाइज होती है, ऐसा मत सोचना कि आप आंसर कर रहे हो तो आपका वेस्ट हो रहा है या आप आंसर नहीं कर रहे हो। आई कैन रिकॉग्नाइज यू गाइज, मतलब आप लोग की भी वॉइस मुझे रिकॉग्नाइज हो गई है। अगर कोई रैंडमली भी एक इंसान कुछ बोलेगा ना तो भी मुझे समझ आएगा ये कौन बोल रहा है। चलो दमा सरा डैश बताओ। वाह, VA। वाह और फिर क्या आएगा, टेलीफोन है, फुल आएगा, telephone है। टेलीफोन है। ओके सो सरा इज गोइंग टू कॉल to the doctor for an appointment। Yeah, so dama मतलब tomorrow होता है, Sarah is going to call to the doctor for an appointment। Rendezvous मतलब appointment होता है, meeting होता है या date भी होता है। So if I'm going on a date, I will still call it a rendezvous, a rendezvous, a rendezvous। And going with a rendezvous एक English word भी है। If you Sushi, is it Yeah, it is an English word, yeah। Yeah, so you can use it in English also, rendezvous। गाने में सुना था कोई तो।
ऐसे deja vu भी हो ना, deja vu, this is deja vu. Deja vu is also an English word. जबकि वो है deja मतलब already और vu मतलब see होता है. आज हमने voir verb पढ़ा था ना, voir verb, वो voir में से vu निकला है. और deja vu भी एक है ना, हाँ, जब भी ऐसी कोई चीज़ जो लगती है कि यार इसको पहले भी देखा हुआ है एकदम, तो उसको हम deja vu बोलते हैं. चलो, तो वो सारे इंग्लिश वर्ड है. अथर्व, we will talk about this later, okay? आपने जो मैसेज किया उसका. Fifth one, il dash. चलो, fifth one, Y to the end. y to the end. Il y to the end. So he is going to study Study for his For his examination examination on Sunday. tomorrow, next Sunday. Next Sunday. He is Next going to Sunday. study for his exam next Sunday. Okay? चलो, very good. Question number 4. शुरू अब कर रहा हूँ मैं. सर एग्जाम अगले संडे के है कि वो अगले संडे पढ़ने वाला है? नहीं, I didn't get your question. क्या कौन सा एग्जाम आप बोल रहे हो? सर ये लिखा ना सर, इसका मीनिंग ये है कि अगले संडे को एग्जाम है कि अगले संडे को पढ़ेगा? He is going to study for his exam. नहीं, पढ़ाई करेगा वो अगले संडे, नेक्स्ट संडे वो पढ़ाई करेगा. He is going to study for his exam next Sunday. या वो पढ़ने वाला है. एग्जाम तो कभी है भगवान जाने. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, सो हमें क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस आले प्लस इंफिनिटिव पहले लगा देना है, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा सबसे पहले? No. No, alone. आलो, नो, आलोन, मॉन्जो और रेस्टोरेंट. Restaurant. चलो, इंग्लिश ट्रांसलेशन. We We are are going going to eat at the restaurant. The restaurant. Restaurant. वेरी गुड. देखो अभी तुम लोग ने पेस अभी पकड़ा है. पहले थोड़ा स्लो बोल रहे, अब थोड़ा फास्ट आ रहा है. ओके, दिस इज नाइस. यू कैन सी इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ. तुम लोग को खुद को एनालाइज करना है और खुद को चेक करना है कि तुम्हारे में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वेरी गुड. चलो, सेकंड वन स्टूडेंट्स, वापस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. सब्जेक्ट कौन सा है? Is. इल, ill. वॉर्म. Warm. कौन सा है? Well, Is warfare. आगे इल वॉरफेयर. यू स्की और ही वेयर. Oh, he there. इंग्लिश ट्रांसलेशन. They are going to do skiing on mountain इन विंटर. in the winter. Very good. They are going to do ski in winter. They are going to do skiing in winter. Third one. चलो, third one. Vuale Alevu. sortir, Alevu. Zale sortir. sortir, Our friend. सर Our- आले आएगा ना पहला? क्वेश्चन मार्क है. अच्छा, question mark. Very good. Yash. Very nice. Alevu. Alevu नहीं सर, sortir. पहला मित्तल बोला था तभी मेरे को सही हुआ. Okay, fine. then मुझे यश की आवाज आई. चलो ठीक है. Nice मिथिल. Alevu sortir. Alevu sortir. फिर क्या आएगा? आवेग. Force. Army. Ami. Yeah, very good. 1, 2, 3, 6 words. So, are you going to go out with your friends? Question mark. Are you going to go out with your friends? Question mark. Okay, बच्चे लोग. चलो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को देखा, इसलिए उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क हमने डाला है. नाइस मिथिल. चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. टेल मी क्या आएगा? Java visitor, love, Java monument, visitor, Gama. monument, Gama. Yeah. Monument. इसको प्रोनाउंस जवे कहते हैं. जवे, जवा नहीं होता. जवे विजिटे. फिर क्या है? ले मॉन्यूमो. प्लूरल है ना मॉन्यूमो. ले मॉन्यूमो. Gima. मॉन्यूमो की स्पेलिंग. ले मॉन्यूमो. फिर जवे विजिट ले मॉन्यूमो. दमा. ओके, दमा मतलब टुमारो हो गया. वेरी नाइस. सो इंग्लिश ट्रांसलेशन. I'm going to visit the I'm going monument. to visit the Monument monument tomorrow. Tomorrow. Very good. I'm going to visit the monuments tomorrow. And going with the last one, fifth one. Yeah. Ilva. Ilva Shantero consort. Zero consort. Konsa. Shante. Oh, English translation. He is going to He's going to sing in concert. his We are going concert. to sing at the Yeah. concert. He is going to sing in the concert. Nice, nice. चलो, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं. Just let me see. अथर्व आप नहीं, अथर्व नहीं, sorry, क्या बोलते हैं? अमय and कृतार्थ. मुझे आप दोनों की आवाज थोड़ी कम आ रही है. What about you guys? And जिनेल की भी मुझे आवाज कम आ रही है. जिनेल आप भी बता रहे हो या नहीं बता रहे हो बेटा? Okay, जिनेल. अथर्व, कृतार्थ and अमय, please talk to me. यस सर. बेटा आपको आ रहा है समझ में थोड़ा बेटा? इंग्लिश सर ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम. ओके, देखो मैं तुम दोनों को बताता हूँ. तुम दोनों को कैसा है ना, मतलब यू गाइस हैव जॉइंड अस इन द मिडिल. ओके, एंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाकी बच्चे लोग हैं ना, वो लोग मेरे फर्स्ट चैप्टर से साथ में हैं.
तो अब उनको एक हैबिट बैठ गया, उनको मेरे पढ़ाने का स्टाइल एक हैबिट बैठ गया है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा उनके माइंड में ऑलरेडी कि सर हर बार यार इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पूछते तो सर ज़्यादातर यही पूछ सकते हैं, मैं और तो कुछ पूछता नहीं हूँ, आंसर पूछता हूँ। तो देखो बेटा आप लोग को भी थोड़ा टाइम लगेगा, वंस यू गेट यूज्ड टू डू माई वे ऑफ टीचिंग इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू ऑल्सो। बट देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि वोकैबुलरी पढ़ोगे तो आएगा, तो बोल भी पाओगे। अब आप लोग को बैठकर वोकैबुलरीज पढ़ना पड़ेगा। मैंने आप दोनों को बताया था यू बोथ हैव टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट्स। मैं इन बच्चों को 2 आवर्स बोल रहा हूँ, एक वीक में 2 आवर्स बोल रहा हूँ। बेटा आप लोग को शायद 2 नहीं 4 घंटे भी लगाने पड़ेंगे हफ्ते में, सेल्फ स्टडी, अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स, अपार्ट फ्रॉम माई होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम तुम लोगों को खुद को बैठ के स्टडीज करनी पड़ेगी। 11th स्टैंडर्ड की अगर डिक्शनरी लेके बैठोगे, टेक्स्ट बुक के लास्ट में डिक्शनरी है, तो इवन दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। आप लोग बैठो, डिक्शनरी को पढ़ना शुरू करो। बिलीव मी आप लोग को बाद में ये सब इंग्लिश ट्रांसलेशन जो ये बच्चे दे रहे हैं ना, वो आप लोग भी दे पाओगे। इज दैट ओके? और ये एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में करना ही है, एकदम स्ट्रेस लो और करो। तुम लोग एक टारगेट बना लो, देयर आर हार्डली 20 पेजेस आई गेस, तो तुम लोग दिन में 2 पेज भी पकड़ोगे तो 10 दिन में सब तुम लोग ऑन ट्रैक आ जाओगे। एंड आई फील 10 हमारा बोर्ड एग्जाम काफी दूर है, 10 महीने दूर है शायद, जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब जितने भी महीने दूर है छोड़ो ना। तो आई फील 10-15 दिन भी लगाएंगे और आप लोग ऑन ट्रैक आ जाओगे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। तो आप लोग खाली एक कर लो, 2 पेज कर लो, खाली एक दिन में 2 पेज का टारगेट रखो अपने आप के लिए और तुम लोग उसको कंप्लीट करो डिक्शनरी को, है ना। मुझे आज ही मिथिल मिला था क्लास में, मिथिल बता रहा था कि सर ये 11 का रिवीजन करते थे, ये एकदम बेस्ट पार्ट सबसे पहले यही हो गया कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गए। बराबर ना मिथिल? आज ही अपनी बात हो रही थी ना? यस सर। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग जो नया टॉपिक करेंगे, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाला टॉपिक बाद में कंप्लीट करेंगे, फिलहाल अभी आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे। मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ। देखो अभी मैं जो तुम लोग को होमवर्क दूंगा उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को खुद से ट्राई करना है, दैट्स इट। सो टिक मार्क कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, और कोई तो एक दिन ग्रुप में डालेगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया है। पहले एक बार आप टिक कर लो, फिर समवन विल पुट इट इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लो, पेज 136। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 टिक कर लो, फिर 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 टिक का मार्क कर लो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, 1 2 3 फिर 6 7 8, बस 6 7 8, 1 2 3 6 7 8 ट्राई करना है बच्चे लोग। 1 2 3 6 7 8 चलेगा, ठीक है। बस इतनी एक्सरसाइज सॉल्व करना, दैट विल बी इनफ फॉर यू गाइस फॉर टुमारो। 1 2 3 6 7 8 प्लीज कोई तो एक ग्रुप में लिख दो कि ये सारी होमवर्क सर ने दी है। चलो मैं एक बार के लिए रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा।